morning, students. My name is Shivani Sharma. Today, I will teach our chapter number 5 Acid, Base, and Salt. In this chapter, we will learn classification of acid, base, and salts, properties of acid, uses of acid, properties of bases, uses of bases, indicator, and neutralization reaction in everyday life. Now, we will explain these in this chapter. We have learned in a previous classes that you all things that we can see around as and the various substance that we use in our daily life consist of matter. जो हम पदार्थ के रूप में हमारे चारों तरफ देखते हैं, सब्सटेंस को देखते हैं, वही क्या कहलाते हैं? सारे substance होते हैं वो. Matter exists in a different form of in nature. It is possible to classify a substance into a group based on a physical properties. So, students, substance can be also be grouped simply on the basis of whether they are sweet, salt, and sours in a bitter to taste. The following blindfold activity will the help of identify common enable things on the basis of taste. In the what is the meaning of sweet? Sweet means मीठा, salty मतलब नमकीन, sour मतलब खट्टा, bitter मतलब कड़वा. ऐसे पदार्थ नीचे दिए गए हैं जो वो आपको इस टेबल में फिल करना है. आपको बताना है कि ये these substance are what is the taste in this substance. Now, I explain acids. We already know that acid is are sour in the taste. In a taste, substance like curd, lemon juice, orange juice, and vinegar taste sour because they contain acids. Acids वो होती हैं जो स्वाद में खट्टी होती हैं, जैसे कि लेमन जूस हो गया, दही हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर मतलब सिरका हो गया. ये सारे क्या कहलाते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इनमें एसिड होता है. In this para, what is acid? The substance which is a sour in a taste are called acids. The word acid comes in Latin words of acere, which means sour. इस लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब शोर होता है. डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड. एसिड आर जनरली कंपाउंड्स. एसिड्स जो होती हैं वो सब डिफरेंट सब्सटेंस अगर लेंगे तो डिफरेंट टाइप की एसिड बनेगी. जनरली हम कंपाउंड में यूज करते हैं. one of the element that make up of an acid molecule is always the hydrogen element. जो हाइड्रोजन होता है जनरली उसे ही हम क्या कहते हैं? एसिड. एसिड उसी कंपाउंड में होगा जिसमें हाइड्रोजन कंटेन होगा. Hydrogen contain HCl contain on one hydrogen atom. It is one chlorine atom. HCl में one hydrogen atom contain है and one chlorine atom contain है. An acid is a substance which produce hydrogen with H plus with dissolve in a water. Generally क्या होता है? जो HCl होता है इसको आप जनरली टू फॉर्म में कट कर सकते हैं. H प्लस जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसका H प्लस आयन अलग टूट जाएगा और Cl माइनस अलग टूट जाएगा. ये दो कंपाउंड में डिसॉल्व होकर टूट जाता है. ये ऐसे H प्लस जो होता है ये एसिड कहलाता है और ये जनरली बेस का काम करता है. H2SO4 sulfuric acid in dissolve in water, so it is 2H plus release 2H plus and SO4 2 minus. This is the acid and this is the base. Now classification of acid. Acid are classified into two groups. जो एसिड्स होती हैं वो जनरली टू टाइप में डिवाइड होती हैं, एक मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड. The acid like hydrochloric, sulfuric, nitric available in your chemistry lab are example of mineral acid. जो mineral acid होती हैं वो जनरली आपकी केमिस्ट्री लैब में जनरली अवेलेबल होती हैं.
These acids should be handled with a great care and because they can burn skin and clothes. इनके हम इन एसिड्स को जनरली हम बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर हैंडल करते हैं क्योंकि ये स्किन और क्लॉथ्स को जला देती हैं. The acids prepared from the naturally occurring compounds and called organic acid. जो नेचुरली कंपाउंड्स जो नेचुरल कंपाउंड से जो बनती हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, जो कि ह्यूमन और प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं. मिनरल आर ऑर्गेनिक एसिड्स. Some others example of organic acids with their sources are given in the table. Like lemon, orange and grapes contain a citric acid. Milk curd is a lactic acid. Tamarind is a tartaric acid. Vinegar is acetic acid. Protein is amino acid. Apples and malic acid. Teas and tannic acid. Vitamin C is ascorbic acids. So in these compounds, we contain organic acids. So generally here present humans and plants. So now concentrated and dilute acids. And acid which has 100% of acid contained it is immediately ideally little water is always present. It is called a concentrated acid. जिसमें थोड़ा सा पानी होता है उसे हम concentrated कहते हैं, जिसमें पानी की मात्रा कम होती है. When you added a solvent, water in more quantity of acid, आप जैसे ही उसमें पानी की मात्रा बढ़ा देंगे तो वो क्या कहलाने लगेगी? डाइल्यूट एसिड. The more solvents you add, the more dilute in a acid becomes. जितना ज्यादा आप पानी या सॉल्वेंट्स मिलाते जाएंगे वो एसिड उतना ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा. Now, properties of acids. Some of the characteristics properties of acid are they are a sour in taste. कड़वे ये क्या होती हैं? खट्टे होते हैं. They can be strong and weak. ये क्या हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं. They can react with some metals and produce hydrogen gas. ये क्या करते हैं? ये मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं. They can causes some organic things to change color. ये क्या करते हैं? कुछ एसिड्स ऐसे हो ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे होते हैं जो सब्सटेंस का कलर चेंज कर देते हैं. They causes a reaction with a limestone that liberated carbon dioxide. Now, uses of acid. Some of the uses of acids are like sulfuric acid. Sulfuric acid generally used in a car and inverter batteries. It is also used in a manufacture fertilizer such as a super phosphate, ammonium sulfate, etc. Because of the importance in a field of chemical industry, it is called a king of chemicals. सल्फ्यूरिक एसिड का जनरली यूज हम इन्वर्टर बैटरीज में और कार में करते हैं. नाउ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड used in a manufacturing explosives such as a TNT. TNT is trinitrotoluene and nitroglycerin. It is used to buy goldsmith for a cleaning gold and silver ornaments. It is also used in a manufacture of artificial silk and synthetic dyes and fertilizers. Now, hydrochloric acid. Hydrochloric acid is a part of a gastric acid in a human and many other animals, which is secreted within a stomach to help of digestion. जनरली ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है ये जनरली ह्यूमन बॉडीज में पाई जाती है और एनिमल्स और बॉडी में पाई जाती है जो हमारे डाइजेशन को स्ट्रिक्टली कंप्लीट करती है. इट इज वेरी यूजफुल फॉर रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ सॉल्ट. ये रिफाइनिंग प्रोसेस में भी ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं. Acetic acid. Vinegar used in a kitchen is in a liquid contain
3 and 6% एसिटिक एसिड। जो विनेगर बनाया जाता है, सिरका बनाया जाता है किचन में, उसमें 3 से 6% लिक्विड एसिटिक एसिड पाई जाती है। इट इज यूज्ड इन अ पिकल एंड इट इज मैनी फूड प्रिपरेशंस। अचार बनाने में और बहुत सारे फूड्स बनाने में भी हम एसिटिक एसिड का यूज करती हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अ क्लीनिंग एजेंट्स इन अ प्रोडक्ट मीन्स इन फॉर अ क्लीनिंग विंडोज, फ्लोर्स, यूटेंसिल्स ईटीसी आदि। इन सबको क्लीन करने के जो एजेंट बनाए जाते हैं उनमें भी एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। It is help to remove stains on a woodwork and carpets। इन सब से भी उनका दाग निकालने में भी यूज किया जाता है। कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक inexpensive and artificially carbonated sparkling wines and others bubbly drink। जो बबल्स जैसे कि जो कोको कोला, थम्स अप जो अपन जनरली पीते हैं, उनमें जो सुगर टाइप का निकलता है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, कार्बोनिक एसिड का यूज करते हैं। बबली ड्रिंक्स जो बनाई जाती हैं वो कार्बोनिक एसिड के थ्रू बनाई जाती हैं। However, carbonic acid is usually from two kinds of salts, the carbonated and bicarbonated। टू टाइप्स के सॉल्ट्स इससे जनरली बनाए जाते हैं, कार्बोनेटेड एंड बाइकार्बोनेटेड। Now, bases. Bases have a soapy feel and taste is bitter to neutralize। जो बेस होते हैं वो जनरली झाग वाले होते हैं एंड कड़वे होते हैं टेस्ट में। They are commonly used for a two purpose to remove grease and dirt and neutralize the effect of acids। इसका जनरली दो चीज में यूज करते हैं हम, एक तो ग्रीस को रिमूव करने में और डर्टी गंदी हुई चीजों को रिमूव करने में और एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में। Actually, bases are compounds and contain oxygen along with the hydrogen। एसिड्स जो बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटेन होते हैं, उनके साथ ऑक्सीजन होगा और वो ऑक्सीजन अलोंग विद द हाइड्रोजन से वो रिएक्ट करेंगे। बेसिस दैट कंटेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। जो ऑक्सीजन से बेस वो होते हैं जो ऑक्सीजन कंटेन होते हैं, जिसे हम ऑक्साइड कहते हैं। while a base that contain oxygen along with the hydrogen is called a hydroxide। जो OH के साथ like this OH कंटेन है, O भी है, H भी है, तो इसको हम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। A base is a substance which produce hydroxide and when added the water। जब हम इसमें वाटर को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस फॉर्म में टूट जाएगा और ये OH माइनस फॉर्म में टूट जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड्स कहेंगे। ठीक है। bases are dissolved in a water or called alkaline। इनको क्या बोलते हैं, अल्काइल्स बोलते हैं। KOH वाटर से डिसॉल्व हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम प्लस एंड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड माइनस में टूट जाता है। नाउ properties of bases। Some of the characteristics properties of bases are they are a bitter in taste and soapy in a touch। स्वाद में कड़वे होते हैं और झगीले झाग वाले, टच करने में झाग जैसा उत्पन्न होता है। They turn a red litmus to blue। This line is very important। ये क्या करती हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। They are characterized by a presence of hydroxyl group। ये क्या करती हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जनरली ब्रेक होते हैं। They react with acid to form salt and neutral substance of and water। ये क्या करती हैं, रिएक्ट और न्यूट्रल कंपाउंड क्या कहलाता है, वाटर, तो उससे ये रिएक्ट करती हैं। They are corrosive of skin। They should not be touched by hand। इन्हें हम हाथ से जनरली टच नहीं कर सकते हैं। Uses of bases। Some of uses of bases। Calcium hydroxide। Calcium hydroxide generally is also a scald lime के नाम से जाना जाता है।
इट इज यूज टू न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, एसिड का न्यूट्रलाइज करने के लिए जनरली हम इसे यूज करते हैं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। एंड ड्रेसिंग मटेरियल्स फॉर एसिड बर्न, जो एसिड से जल जाते हैं उन बस मटेरियल को फिर से रिकवर करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। एंड इन एंटीडोट ऑफ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग का एंटीडोट बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। in a, in the preparation of fungicides and in the mixture of whitewash, it is a mixture with a sand and water to make a mortar which is used to the construction of buildings. It is used to farmer on the field of neutralizing and harmful effect of acid rain. जो एसिड रेन के द्वारा जो खेती किसानी जो होती है ना, खेती किसानी में जो एसिड रेन के द्वारा जो हार्मफुल इफेक्ट्स होती हैं, हार्मफुल एसिड्स गिरती हैं, उनको भी ये न्यूट्रलाइज करता है कैल्शियम। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अवर फार्मर फील्ड में। Now, sodium hydroxide. Sodium hydroxide is also known as a caustic soda. इसको हम caustic soda के नाम से जानते हैं। It is manufactured in a soap. ये soap बनाने में generally use होता है। It is used to petroleum refining in a making a medicine. Medicine बनाने में paper pulp ये सब बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग अ रेयन, रेयन बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नाउ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग alkaline chemical which is available in a plates and plaques, also known as a potassium hydrate and caustic पोटाश के, ये जनरली टुकड़े की फॉर्म में मिलता है, ये पैलेट्स बोलते हैं इनको। इन अ केमिकल is a commonly used to a diagnosis and treatment of fungal infection of skin, hair and nails। इन सब इनके ट्रीटमेंट में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is utilized on the short term basis of manage constipation। It is all comes as a tablet and liquid that can be taken through a mouth. However, magnesium hydroxide has a side effects such as stomach cramps, upset stomach, vomiting, and diarrhea. Ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide is used to remove ink spots from the cloths। आपकी जो इंक की धब्बे लग जाती है ना कपड़ों में, उसको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। फ्रॉम अ क्लॉथ्स टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो panes। It is used to a cosmetic industry। One of the largest uses of ammonia is a fertilizer। इसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज जनरली हम फर्टिलाइजर के रूप में भी करते हैं। And this exercise you will done yourself। Now, how can we identify acid and bases? We all already know that acid are sour while bases are bitter in taste, but every substance cannot be tasted in a find out in a acidic and bases। Now, the question is arise, if you cannot be every substance, taste in every substance, how do we find a nature? Therefore, a taste for a acid and bases, we are substance for called indicator। हम जनरली क्या करते हैं, एसिड और बेस को हम जनरली कैसे फाइंड करेंगे, हमें उसके लिए इंडिकेटर की जरूरत होती है। तो व्हाट इज अ इंडिकेटर? Indicator, a special type of substance, is used to test whether a substance is acidic and basic। इस इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें जनरली बताते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो a substance known as a indicator।
The indicator change that a color when added to a solution containing acid and base substance. Indicator can be either natural and synthetic. जो इंडिकेटर होते हैं वो जनरली नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, लाइक अ टर्मरिक, litmus, China rose plain petals, and some often naturally occurring indicators. On the other hand, phenolphthalein, methyl orange, etc. are the synthetic indicator. Phenolphthalein is the most important indicator and methyl orange also most important in the indicators. Now, litmus paper. Litmus paper generally you have seen in chemistry lab. The most commonly used natural indicator is a litmus paper. It is a extract from a lichen. It is a move purple color in distilled water and when added in acidic solution it is turned to red. जैसे ही आप किसी भी एसिडिक पेपर को ब्लू लिटमस पेपर से अगर वो रेड में टर्न होता है और रेड से वो ब्लू में टर्न होता है तो ये एसिड है, और जो बेस है, बेस होता है वो क्या होता है, when added to a acidic solution it is a turn red. अगर आप किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डालते हैं, रेड लिटमस पेपर को, तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. एंड एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इन अ टर्न टू ब्लू. रेड को आप ब्लू किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा, और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा. From the solution it is formed to strip of paper known as a litmus paper. जो एक स्ट्रिप होती है उसे हम लिटमस पेपर कहते हैं. जनरली इट इज अवेलेबल टू रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. ये क्या होते हैं, जनरली दो प्रकार के पेपर होते हैं, एक रेड होता है एक ब्लू होता है. जैसे ही आपने ब्लू लिटमस पेपर को आपने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो वो रेड में चला जाएगा, और रेड लिटमस पेपर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो वो ब्लू चेंज कर देगा. नाउ टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. टर्मरिक क्या होता है, जनरली हल्दी होती है. आपने देखा होगा कि आपकी किसी व्हाइट शर्ट या किसी भी कपड़े में आप हल्दी लग जाती है तो वो एक पीला कलर का धब्बा छोड़ देती है. अब जैसे ही उसमें कोई भी बेसिक सॉल्यूशन लाइक अ बेकिंग सोडा आप जैसे ही डालोगे तो वो कलर चेंज हो जाता है. क्या हो जाता है, रेड कलर में चेंज होता है. तो हम जनरली टर्मरिक को इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करते हैं. Turmeric as an indicator. Turmeric is another natural indicator. It is a bright yellow dye often in a powdered form. ये क्या होती है, येलो डाई के फॉर्म में जनरली यूज होती है. फ्रॉम अ प्लांट से मिलती है. इट इज यूज टू इंडिकेटर फ्रॉम अ टर्मरिक पेपर. इसको भी हम टर्मरिक पेपर के थ्रू इंडिकेटर के थ्रू यूज करते हैं. इट इज चेंज इन अ कलर येलो टू रेड ही चेंज होगा टर्मरिक से. When it is come to contact with acid base, it does not change its color. When it is comes in a contact with acid and it is neutralized substance. Turmeric is therefore indicator for only base. ये जनरली जो होता है टर्मरिक, ये सिर्फ बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा. जनरली आप कपड़े को साबुन से या फिर उसको सर्फ एक्सेल या किसी भी डिटर्जेंट से ही वॉश करेंगे तो वो जनरली बेस से ही रिएक्ट करता है. Now, China rose or as an indicator. China rose is a flower whose petals can be used to a natural indicator. It is prepared by adding warm water to China rose petals in a beaker. After a few minutes, the water acquires colors. It can be used to and as indicator. It turns the red of acid solution to dark pink and it's that basic solution to green. आप जैसे ही चाइना रोज इंडिकेटर का यूज करेंगे, जनरली ये हम जनरली यूज नहीं करते हैं, बाकी आप कभी मिले मौका तो कर सकते हैं. चाइना रोज इंडिकेटर का यूज हम जनरली बेस और एसिडिक पहचानने में ही करते हैं. तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में अगर एसिड है तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, वो चेंज कलर कर देता है तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, और अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा. नाउ फिनोल्फथलीन. इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर.
फिनोप्थिलीन क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। जनरली हम केमिस्ट्री लैब में फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों इंडिकेटर का यूज करते हैं। It is a synthetic indicator that change in a color in a basic medium. It is colorless in a acidic solution. अगर फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगी तो वो क्या करेगा? कलर देगा। और किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगी तो वो कलर रिमूव कर देगा। एंड टर्न पिंक इन अ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या करती है? पिंक कलर देता है। And now methyl orange, it is a synthetic also synthetic indicator that change in its color in a acidic medium. ये methyl orange सिर्फ acidic medium में ही कलर चेंज करेगा। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से केयरफुल होकर ये टेबल आपको लर्न करनी है। इंडिकेटर ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। कलर इन एसिडिक मीडियम में ब्लू का रेड हो जाएगा, रेड का रेड ही रहेगा। अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो रेड लिटमस पेपर चेंज कलर नहीं करेगा। पेपर का कलर एसिडिक मीडियम में चेंज नहीं होगा, सिर्फ बेसिक मीडियम में ही चेंज होगा। बेसिक मीडियम में चेंज होगा। और न्यूट्रल मीडियम में ये ब्लू का क्या हो जाएगा? पर्पल कलर का, और ये बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू ही रहेगा ना। फिनोप्थिलीन क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस होगा। न्यूट्रल मीडियम में भी ये क्या होगा? कलरलेस होगा। और बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर देगा, और न्यूट्रल में कलरलेस, एंड बेसिक में येलो कलर देगा। Now, students, universal indicator. Universal indicators, it is a mixture of several different indicators. Unlike litmus, universal indicator can show you exactly how strongly acidic and alkaline solution is. It is a measure of pH scale. आप pH स्केल से भी एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। The pH scale runs of pH 0 to pH 40. A universal indicator has many different colors, change from red for strong acids to dark purple from a strong base. In the middle neutral, pH 7 is indicated by green. The indicator can be used to liquid or can be soaked into paper. This paper is called a pH paper. When a pH paper is dipped in acid or base, the color obtained can be matched with the chart given below. In this chart, I can see a universal indicator and pH number. Red color is very strong acid and purple color is very strong base. Light blue and is alkaline, weak alkaline, and weak base. This is green color is shown up natural is neutral. For example, milk, pure water. Now, salt. Salt are a substance that are formed when acid base react with each others. This reaction is called a neutralization reaction. जो एसिड और बेस की रिएक्शन दोनों ही रिएक्ट कर जाएं एक दूसरे से तो वो क्या बना लेते हैं? सॉल्ट बना लेते हैं। In this reaction, acid lost its acidity and base its alkalinity. As a result, is a neutral solution is obtained. This is reaction can be represented. Acid अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? दोनों सॉल्ट फॉर्म में बन जाएंगे। ना ही ये एसिड रहेगा फिर ना ही ये बेस रहेगा। जैसे HCl NaOH से रिएक्ट करके NaCl बना लिया। NaCl क्या है? एक सॉल्ट है जिसे हम क्या लिख सकते हैं? Na+Cl-। ये सॉल्ट फॉर्म में लिखना है और वाटर रिमूव हो जाएगा। ये क्या है? जनरली सॉल्ट फॉर्म है। तो NaCl और HCl NaOH और HCl ने रिएक्ट करके क्या बना लिया? Na+Cl-। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट होता है। ऑल सॉल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल। सारे सॉल्ट्स क्या होते हैं? न्यूट्रल नहीं होते हैं।
इट कैन बी एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट विथ वीक बेस। आप देखो जनरली इन्हें क्या बोला है, सारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो सारे न्यूट्रल नहीं होते हैं, उनमें से कुछ एसिडिक होते हैं और कुछ बेसिक होते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा कैसे, वीक बेस से, तो वो क्या कहलाएंगे, एसिडिक सॉल्ट्स कहलाएंगे। और बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक एसिड से, तो वो बेसिक सॉल्ट बनाएगा। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस इट इज न्यूट्रल सॉल्ट आर फॉर्म्ड। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ वीक बेस, तो वो क्या बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। और एंड स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक एसिड से, तो वो क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्ट बनाएगा। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड देन रिएक्ट कैसे करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस से, तो वो न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। ठीक। नाउ यूजेस ऑफ सॉल्ट। The use of salt, some salts are discussed below. Sodium chloride is a common salt used generally food and enhance taste. Taste बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। It is good preservative and used for a preserving pickles. अचार को सुरक्षित रखने में जनरली कौन सा नमक ही यूज करते हैं। It is also used to producing freezing mixture via adding it into ice. जो पानी को बर्फ बनाने में भी हम जनरली सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ग्लास बनाने में क्या यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज washing soda which is used to making paper soap and detergent. Sodium bicarbonate is also called baking soda. It is used to baking cake and bread. It is also useful of preparation of many medicines and other even fire extinguishers. Copper sulfate is used to a dyeing agent in an anhydrous form and an additive for a fertilizer and foods and several industrial applications such as a textile, leather, wood, batteries, ink, petroleum, paint, and metal, among others. It is also used animal neutralization supplements. Neutralization in reaction in everyday life. Neutralization reaction are quite common in everyday life. Insect sittings. The sittings of ant contain formic acid. जैसे ही आपको जैसे चींटी काटती ना, तो वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड को रिलीज कर देती है। When an ant bite, it inject an acidic liquid into our skin. हमारी स्किन में वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड अंदर चला जाता है। If the effect of sting can be as neutralizing via rubber and moist baking soda and a calamic solution which contains zinc carbonate. इनसे ही क्या होता है, वो हमें बताती है। चिंटी जो काट जाती है ना, वो फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर चली जाती है तो फूल जाती है। Acidity. The stomach secreted hydrochloric acid which help in a digesting of food. Acidity कहाँ, पेट में बनती है अपने। But sometimes due to excessive acid, ज्यादा मात्रा में आपने पेट में अगर एसिड पहुंच जाएगी तो वो क्या करती है, इनडाइजेस्टिंग होने लगती है, तो वो हमें क्या बन जाती है, गैस टाइप की बनने लगती है। ज्यादा हम कुछ खट्टा खाते हैं ना, तो एसिड जल्दी बनती है, एसिड ज्यादा हो जाती है बॉडी में, तो वो एसिडिटी बनने लगती है।
In order occur in digesting, we take base called antacid, such as milk of magnesia. ये होता है magnesia, milk of magnesia. It contains a magnesium hydroxide which helps its neutralization. The effect of excess acid, this is give a relief to person suffering from acidity. ये क्या करता है, रिलीफ फील कराता है, अच्छा फील कराता है एंटासिड से. Treating waste from factories. Many factories waste the follow in the body. Water bodies are acidic in nature. They can harm the fishes and other aquatic life. Factory waste must be neutralized by adding basic substance before allowing the enter water bodies. क्या होता है, जब आप वाटर जो भी फैक्ट्री से जो गंदा पानी वगैरह निकलता है ना, तो उसमें क्या होता है, नेचर में बहुत ज्यादा एसिडिक होता है. तो उसमें क्या करती हैं, जो कि हार्मफुल होता है किसके लिए, एक्वाटिक लाइफ, जलीय जीव के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है. तो जब भी हम फैक्ट्री में कोई भी वाटर में कोई भी चीज को रिलीज करेंगे, जाने देंगे, तो उसको हम पहले बेस से ट्रीट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो वो जनरली उसे हम न्यूट्रलाइज करके ही फैक्ट्री का जो पानी, गंदा पानी होता है, उसको हम वाटर में रिलीज कर सकते हैं. प्रिवेंटिंग tooth decay. When you brush your teeth using a toothpaste which contains bases and kind of acid present in our mouth or teeth cavities and neutralized. जनरली हम रोज ब्रश करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं, जो तो हमारे टूथब्रश में, जो टूथपेस्ट में क्या होता है, नमक होता है, जनरली बेस होते हैं. तो वो क्या होता है, बेस होता है, और हमारे मुंह में क्या होता है, एसिड होता है. तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. दिस द हेल्प ऑफ प्रिवेंटिंग टूथ डिके. ये क्या कहलाती है, हमें गंदे कीड़ा वेड़ा लगने से बचाती है. ट्रीटिंग सॉइल. Neutralizing of soil is necessary to promote plant growth. Excessive use of chemical fertilizers make a soil acidic. When the soil is too good acidic, it is treated with the bases such as a quicklime calcium oxide and scald lime calcium hydroxide. These bases neutralize the excess acid present in soil and hence soil become a neutral. अब जो जमीन को भी आप ट्रीट करते हैं जनरली, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो सॉइल होती है वो अगर ज्यादा एसिडिक होती है, तो उसको हम बेस से रिएक्ट करा देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगी. थैंक यू.